ये जो न्यू मेंडलिज्म है बहुत इंटरेस्टिंग है, को डोमिनेंस। जैसे हमने पहले बोला रेड कलर, हमने मिरापलिस वाला जो एग्जाम्पल लिया था, मिरापलिस, दिस इज़ 4 o'clock प्लांट। इसमें क्या हुआ था, हम लोगों ने रेड कलर और वाइट कलर फ्लावर को जब मिक्स किया था तो वी आर हैविंग टाइप विच इज़ कॉल्ड पिंक। ना रेड कलर दिखा ना वाइट कलर दिखा, राइट? सो इट वॉज समथिंग इन द मिडल, राइट? बट नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ काइंड विच इज़ कॉल्ड एज को डोमिनेंस। इसमें मतलब दोनों अपने असर दिखा रहे हैं, टू डिफरेंट कलर्स आर विजिबल, दैट्स वाई वी यूज द वर्ड को डोमिनेंस। okay, when both the alleles are representing, see this example, they have crossed a parent, and when the parent of this particular cattle was crossed, it was red, which is capital R, okay, crossed with a male which is capital Y, white male, capital Y, W and capital W, right? Now the resultant product which we got, one was RW and another was RW, but RW was again crossed. What do you say here? You can see both the colors are visible. Red is also visible, white is also visible. Here also similar way, red is also visible, white is also visible, right? So again these were crossed, F1 were crossed with each other, selfing was done. So resultant product mein you can see we obtained red roan variety, 2 roan variety, and another white. So here when both the colors are, both the alleles are expressed, red is also expressed, white is also expressed, together they are expressed, we call that as co-dominance. When both the alleles are expressed, it's called co-dominance. F1 में कभी भी dominant ही आता था, हमने यही पढ़ा था ना कि मेंडल ने बोला था कि F1 में सिर्फ according to law of dominance जो dominant characters that will be expressed, लेकिन यहाँ देखो F1 में भी express किया है, F2 में भी co-dominance आया, तो मतलब again it is neo-Mendelism. So this example, when you do it, please make sure you're doing the phenotypic and genotypic ratio also. So question कैसे आता है? Question में पूछते हैं explain neo-Mendelism using an example of a cattle. तब आपको लिखना होगा, you have to identify what is that. Then you will remember the name. It is called co-dominance, wherein both the alleles are expressed. अगर question आया incomplete dominance को explain करो, then you have to talk about Mirabilis jalapa. The color of the flower was crossed and you got pink. Not just that, you have to write the genotype parents. Cross करके दिखाना पड़ेगा, Punnett square बनाना पड़ेगा. But यहाँ पे ये diagram में don't worry, आपको ये diagram नहीं बनाने पड़ेंगे. All you have to do is just write this. Okay, phenotype भी लिखो, genotype भी लिखो. आपको ये diagram नहीं बनाना होगा. So don't worry about that. Okay. Then we have next type of deviation. पहला deviation clear हो गया, पहला neo-Mendelism clear हो गया. दो कभी भी सारे एक साथ नहीं आएंगे because it becomes a very long question. You will not get it like that. So the next one is single trait. They pass on from a gene, and every gene is expressed by 2 alleles, not more than 2. So okay, when you talk about this, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला in the previous video, you heard. Okay, let's say pea plant. Pea plant में क्या हुआ था? Height of the plant was determined by the 2 alleles. One was capital T and another was small t. जब दोनों capital T था, tall पौधे आ रहे थे. जब दोनों small t थे, small dwarf पौधे आ रहे थे, right? So हमारे पास सिर्फ 2 ही allele था, एक capital T और एक small t. यही बताया था मेंडल ने कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 2 अल्टरनेटिव अलील होते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी. जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके. बट इन ह्यूमन्स
and in many other cases. I'm just giving you humans का. Okay, in your textbook you have Drosophila. Drosophila के wings का you have variety. Okay, so उसके अंदर ऐसा नहीं था wings को सिर्फ 2 allele थे. They had, one was normal wing VG plus, when the other was nicked, then it is called VGNI. When it was notched, halka sa, you can say there was small notch on the wing, then it is called VGNO. Then it was strap wing, when there is a strap, so then it will be called as VGST. And if vestigial wing, wings, no wings, so VG, like this. So many alleles, right? Notched, then we have strapped, nicked, then VG, normal wing. So wings को ही represent करने के लिए कितने alleles थे? 1, 2, 3, 4, 5. 5 alleles थे ना? You want to have a look? You can just see here. See this? Right? Wings को ही represent करने के लिए कितने alleles हो गए? 5. So मेंडल ने क्या बोला था? 2 होंगे, ज़्यादातर 2, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है. So we call it as multiple allelism. Okay? When on one chromosome you have these varieties. Now let's say another example which you can remember is the blood group. Humans have got multiple allelism in blood group. Let's say if a blood group is A, another is B, we cannot say only these many are there. हमारे पास blood group होते हैं, पहले मैंने सिर्फ O बोला होगा by mistake. I'm sorry, we have 4. अगर हम लोग देखेंगे हमारे आजू बाजू कैसे लोग हैं, they will say I have A plus, then B plus, प्लस माइनस को चलो अभी हम छोड़ देते हैं, वो हम बाद में करेंगे. फिर कोई और बोलेगा हमारा O है, उनका भी अलग है, O प्लस O माइनस, बट स्टिल O इज़ द वन, राइट. फिर कोई बोलेगा मेरा A भी है, राइट. सो कितने एलील हो गए यहाँ पे? 4. 1, 2, 3, 4. So total 4 alleles. So this is also an example of multiple allelism. This is not there in this chapter, I suppose. I don't remember now. Let's see. Okay. एग्ज़ाम में आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नियोमेंटलिज्म का आप लिख सकते हैं. को डोमिनेंस जब आएगा वो भी आप आराम से लिख सकते हैं. मल्टीपल एलिलिज्म आएगा तो मेक श्योर यू राइट ड्रोसोफिला का, बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. ओके, देन वी हैव, ओके दे हैव गिवन एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में है यहाँ पे है, दे हैव गिवन. ओके, अब मैं एक छोटी सी चीज़ आपको समझा देती हूँ. थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वेर इन यू शुड अंडरस्टैंड. इफ़ अ पर्सन इज सेइंग मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो वो इंसान का जीनोटाइप आप लिखोगे कैसे? दिस इज़ गोइंग टू बी हीमोग्लोबिन, दैट इज़ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इन पेयर, बट इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन होगा कैपिटल ए, राइट. देन दूसरा ऑप्शन क्या है? कैपिटल ए एंड 0 भी लिखा तो भी चलेगा, कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा. सो प्रेजेंटेशन, हाउ विल यू राइट ब्लड ग्रुप ए के जीनोटाइप? सो इट इज़ ईजी फॉर यू टू राइट. नाउ व्हाई इज़ इट ए? हम क्यों बोलते हैं इस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, व्हाटएवर, राइट? Now you must be wondering what is this C and D. We have a lot of blood groups, okay? We have MNS, we have P, we have Lewis, we have Rhesus, we have Duffy. Not in humans, but still you should be knowing we have various blood groups are there in the world. तो ये blood group कैसे decide होता है? जो आपके RBCs होते हैं. If I'm drawing an RBC, you know, the RBC is like this. RBC के ऊपर अगर एंटीजन ए है
ऑन द सरफेस, ऊपर ऊपर, मतलब जैसे आप मेदू वड़ा खाते हैं तो ऊपर ऊपर मेदू वड़ा क्यों एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आरबीसी मेदू वड़ा जैसे ही होता है, बीच में से थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, गड्ढा नहीं होता मेदू वड़ा जैसा टोटल, लेकिन डिप्रेशन होता है। उसके ऊपर अगर आप कोथिंबीर डालेंगे तो ऊपर ऊपर होगा ना, उसके अंदर नहीं होगा ना। अंदर क्या होगा, काली मिरी होगी, राइट, सो उड़द होगा, सो अंदर जो होता है वो एक्सप्रेस नहीं होता। तो यहाँ मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया, तो आप इमेजिन कर सकते हो अगर मेदू वड़ा लिया है, उसके ऊपर कोथिंबीर है, राइट, ग्रीन लीव्स आर स्कैटर्ड, ओके, जस्ट लाइक दैट हमारे आरबीसी के ऊपर जो पर्टिकुलर एंटीजन है, अगर एंटीजन ए है तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप ए होता है, ओके। अगर एंटीजन, आई एम ड्राइंग अनदर, अगर किसी इंसान के ब्लड ग्रुप, ये है हमारी वेराइटी, लेट्स जस्ट ड्रॉ, दिस इज आरबीसी, ओके, आई शुड चेंज द कलर फॉर यू पीपल, यू विल से व्हाट इज दिस, दिस इज आरबीसी, and another variety, okay, 4 varieties are there। अगर ऊपर ऊपर एंटीजन ए होगा तो उसको बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप, अगर ऊपर एंटीजन बी होगा तो बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप, अगर ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों नहीं होगा तो उसको बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप, राइट, और अगर ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों होगा तो हम उसको बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। क्लियर है? ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, जब एंटीजन सरफेस पे होता है, रेड ब्लड सेल के ऊपरी लेयर में होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है, अभी सपोज ये जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया है उसके अंदर भी होता है, दैट इज बी एंटीजन अंदर है, इसलिए इट इज़ नॉट कंसिडर्ड। यहाँ पे अंदर होता है ए, यहाँ पे अंदर कुछ नहीं होता, यहाँ पे अंदर होता है ए एंड बी। तो अंदर होने से प्लाज्मा के अंदर एंटीजन है बी ए बी और कुछ नहीं, राइट, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता। जब आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के ऊपर जब होता है उसको कंसिडर किया था। जब आरबीसी के ऊपर ए होता है उस इंसान का ब्लड ग्रुप ए होता है। अगर आरबीसी के ऊपर बी होता है, ऊपर मीन्स उसके सरफेस पे, तो उसको बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप। अगर किसी के ब्लड ग्रुप के ऊपर ना ए है ना बी है तो उसको बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप। और किसी के आरबीसी के ऊपर दोनों ए और बी होता है तो हम उसको बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। अब कुछ बच्चे बोलेंगे लेकिन मैम हमने तो सुना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस। It's by mistake I said C, but don't go by it. So you've heard, no? A positive, B positive, A negative, B negative. Now ये A negative और B negative कैसे आता है? That is because of the rhesus factor. उसके लिए एक अलग एंटीजन होता है, मैं बताती हूँ। उस एंटीजन का है नाम D। अगर D एंटीजन ऊपर है तो वो इंसान का ब्लड ग्रुप बन जाता है ए पॉजिटिव। अगर डी एंटीजन नहीं है, ओके, नहीं है, इट्स नॉट देयर, देन इट इज कॉल्ड ए नेगेटिव। वी कॉल इट एज ए नेगेटिव। वैसे ही अगर जिस इंसान का ब्लड ग्रुप बी है, इसके ऊपर अगर डी एंटीजन है तो ये आदमी का ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी पॉजिटिव। और अगर ब्लड ग्रुप रेहेसिस फैक्टर डी नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी नेगेटिव। समझ आया? और अगर एक इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसके आरबीसी के ऊपर इफ़
D is there, then that fellow will be O positive. If D is not there, then that fellow will be O negative. If a person with AB, उसका D भी है ऊपर परत पे, on the layer, on the upper surface of RBC, then that fellow will be AB positive. और अगर नहीं है D antigen or rhesus factor, you call that person AB negative. Okay? If not clear, repeat it once again. Okay? Just go through it once again. If you want, you can just go to page number 226. Maybe that can also help you out. Page number 226. Okay? How to represent, how to write. It will be easy for you to go through it. Next is, how much? Next type of deviation that we have to understand is pleiotrophism. Pleiotrophism, pleo means many. Pleo का मतलब है many. हमको मेंडल ने क्या बोला था कि एक जीन, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, अगर कोई बोल रहा है कि ये है पौधे का, तो जो टी है वो सिर्फ उसके टॉलनेस को कंट्रोल करेगा ना. लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर the characteristics is more than one. That is sickle cell anemia का जो particular gene है वो sickle cell anemia को भी express करता है, death भी देता है और normal life. So you have many characteristics presented. We are going to do pleiotrophy in our next video. Enough for today. We'll just wind up. In the next lecture, we'll continue with pleiotrophy. Okay.